Good morning. We will understand the accounting of GST. This is very important. Accounting of GST. Almost हर क्वेश्चन में हमें GST की accounting है. Then accounting of GST. Accounting of GST. Example. आपको समझाऊंगा मैं, ध्यान देना. There is a supply chain. Supply chain मतलब क्या? When goods are manufactured, those are delivered to the place of consumer. So the goods passes through the hands of many persons. Those are called as the right wholesaler, retailer, etc. Dealers. So try to understand there is a supply chain. सप्लाई चेन लाइक सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर, उसके बाद आएगा राइट होलसेलर, होलसेलर के बाद आएगा रिटेलर, और रिटेलर के बाद आएगा कंज्यूमर. This is supply chain. Producer produces goods. Obviously, he also purchases raw material for that purpose. He purchases raw material for that purpose. He, right, uses labor, various things to produce goods and services. Try to understand. So, he produces, he incurs some cost, then he produces goods, he adds his profit and then sells to wholesaler. Example, ध्यान देना. The producer his cost is rupees 80. His cost is 80. He incurred 20 rupees profit. He incurred 20 rupees profit. He incurred 20 rupees profit. His cost incurred is 80. His profit is 20. ठीक है, ये हो गया 100. So selling price is 100. Selling price is 100. Try to understand. Selling price is 100. Government asks seller to collect GST from his buyer. Suppose example के तौर पे GST is 10%. So wholesaler will collect rupees 110 from producer, will collect 110 from the wholesaler. क्या हुआ ध्यान देना. Producer incurred cost of rupees 80, right? He incurred cost of rupees 80. He added his profit of 20. Total selling price of the product is 100. Then as per government 10% GST है. So 100 rupees का 10%, 10 rupees GST आएगा. So wholesaler has to pay 110 to producer. Wholesaler has to pay 110 to wholesaler. Try to understand. So
wholesaler will pay 100 plus GST, 10 10 rupee GST. Wholesaler will pay 100 plus 10 GST. Now होलसेलर की कॉस्ट कितनी रहेगी? इट इज नॉट 110. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप बोलोगे सर होलसेलर को 110 पे करना है तो उसकी कॉस्ट 110 रहेगी. नो, हिज कॉस्ट इज स्टिल 100. क्यों? उसका रीजन मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना. हिज कॉस्ट इज 100 only. He adds his profit of, example, he adds his profit of 20 rupees. Now his selling price is 120. His selling price is 120. He has to, मतलब होलसेलर ने परचेस किया 100 पे. आप बोलोगे सर होलसेलर ने प्रोड्यूसर को 110 रुपीज दिए. 100 प्लस 10 जो टैक्स पेड किया है ना, इट इज नॉट द कॉस्ट. टैक्स पेड जीएसटी, होलसेलर हैज पेड प्रोड्यूसर, राइट, 10 rupees tax. That is not his expense. Try to understand. Tax paid is not expense. So भले ही होलसेलर ने प्रोड्यूसर को 110 पेड किया, बट हिज कॉस्ट इज नॉट 110. हिज कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग GST. Purchase is excluding GST. Sales is excluding GST. होल प्रोड्यूसर का सेल 100 रुपीज है, एंड वही सेल होलसेलर का परचेस है. सो यहां से एक पॉइंट मिलता है, लिख लेना कहां पे, तो टॉप ऑफ द पेज. टॉप ऑफ द पेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लेना टॉप ऑफ द पेज, everyone. Top of the page. The purchases and sales are always excluding GST. Purchase and sales are always excluding GST. Tax paid is not expense. Tax paid is not expense. And tax collected is not income. Tax paid is not expense. Tax collected is not income. ठीक है, चलो लिखो. यस, आगे. नाउ इसलिए हुआ क्या, ध्यान देना. हुआ क्या, राइट? ओके, परचेस एंड सेल्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी. परचेस एंड सेल्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी. एंड टैक्स पेड और टैक्स कलेक्टेड, जीएसटी पेड और जीएसटी कलेक्टेड, फिर से बोलता हूं, परचेस एंड सेल्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी. टैक्स मतलब वो जीएसटी टैक्स है. जीएसटी पेड एंड जीएसटी कलेक्टेड. अगर आप बायर हो तो यू हैव टू पे जीएसटी. अगर आप सेलर हो, यू हैव टू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम बायर. इज नॉट एक्सपेंस. जीएसटी पेड इज नॉट एक्सपेंस. जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट इनकम. ठीक है, आगे. अब ध्यान देना क्या हुआ. इसलिए होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, भले वो कलेक्ट करेगा 110, बट उसकी इनकम राइट, उसकी इनकम 100 ही है, एंड वही एक्सपेंस होगा किसी का, होलसेलर का. होलसेलर ने 100 में परचेस किया, 20 रुपीज उसने उसका खुद का प्रॉफिट ऐड किया. ठीक है, 120 हो गया. नाउ ही विल सेल इट टू रिटेलर. वो किसको पे सेल करेगा? रिटेलर को. And he has to add tax of 10%, 12 rupees. So retailer has to pay 132. To whom?
रिटेलर हैज टू पे 122 टू होलसेलर। इसमें होलसेलर की इनकम कितनी है? 122। सेल कितने का है? 122। सेल इज 122, कॉस्ट वाज 100, सेल इज 122, 120, and therefore the profit is 20. Retailer has paid 12 rupees tax. रिटेलर ने क्या पेड किया, ध्यान देना। रिटेलर ने 120 रुपीज प्लस 12 रुपीज टैक्स पेड किया, ठीक है, टू होम? होलसेलर। कोई मुझे बोलेगा रिटेलर की कॉस्ट कितनी है? इज इट 120, 132? कितनी रिटेलर की कॉस्ट कितनी होगी? एनीवन? 120, गुड। रिटेलर की कॉस्ट होगी 120, ऑलवेज एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब ध्यान देना, रिटेलर परचेसेस, ठीक है, रिटेलर परचेसेस गुड्स ऑफ 120, he adds 30 rupees प्रॉफिट, सपोज उसकी सेलिंग प्राइस 150 है, he has to sell it to whom? Customer, and he sells the customer after adding 10% tax, 15 rupees. So he will collect 165 from the customer. Customer will pay, ठीक है, customer will pay retailer 150 plus 15, 150 plus 15। इसमें इसकी कॉस्ट 120 थी, परचेस 120 का था, सेल्स 150 का है, तो प्रॉफिट 30 रुपीज का है। कोई मुझे बोलेगा कंज्यूमर का एक्सपेंस कितना होगा? कंज्यूमर की कॉस्ट कितनी होगी? इज इट 150, 165 और व्हाट? नो, कंज्यूमर का एक्सपेंस 165 होता है। कंज्यूमर का एक्सपेंस 165 रुपीज होता है। रीजन, कंज्यूमर डज नॉट सेल द प्रोडक्ट टू समवन एल्स, ही कंज्यूम्स। जो कंज्यूमर है ना, राइट, ही डज नॉट सेल द प्रोडक्ट टू समवन एल्स, इसलिए जो 15 रुपए टैक्स पेड किया है ना, उसकी कॉस्ट होती है। सो ये चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स, you also pay indirect tax, even though you are not earning, still you pay indirect tax to the government. अब ध्यान देना क्या हो रहा है एवरीवन। होलसेलर के पॉइंट ऑफ से देखो, होलसेलर टैक्स पेड, जीएसटी पेड, कितना पेड किया उसने? जब परचेस कर रहा था तब उसने टैक्स पेड किया था, जीएसटी कितना पेड किया उसने? राइट, उसने कितना पेड किया बोलो? उसने कितना पेड किया? होलसेलर ने जीएसटी कितना पेड किया? पेड इज 10, जीएसटी कलेक्टेड, या मैं पहले से देखता हूं, एक मिनट। अब हम थोड़ा और डीप में जाके देखते हैं, एक सेकंड। मैं थोड़ा इसको इस साइड भी ले सकता हूं। देखो, हम सबके लिए ढूंढेंगे, ठीक है, ध्यान देना। जीएसटी पेड एंड जीएसटी कलेक्टेड। मुझे बोलो, ये जो हमारा होलसेलर है, प्रोड्यूसर, उसने जीएसटी कुछ पेड किया है क्या? कुछ लिखा है क्या कि इसने किसको जीएसटी पेड किया है? उसने 80 रुपीज की कॉस्ट इंकर की है, उसने 80 रुपीज की कॉस्ट इंकर की है, बट इसके लिए कुछ लिखा है क्या कि जीएसटी वगैरह? नहीं, तो उसका जीएसटी पेड इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज 0, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल से, राइट, द जीएसटी पेड इज 0, जीएसटी पेड इज 0। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कहां से? तो मुझे सप्लाई चेन स्टार्ट करनी है, तो मैंने
प्रोड्यूसर के यहां से स्टार्ट किया. I know he incurred 80 rupees cost to manufacture the goods and then he added 20 rupees profit. तो total selling price is 100. However, जब मैं बोल रहा हूँ his total selling price is rupees 100, right? उस पे उसने टैक्स कलेक्ट किया है. When he sold those goods, he added the tax. बट उसके परचेस के टाइम उसने कितना टैक्स पेड किया है, जीएसटी पेड किया है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसको जीरो माना है. इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने जीरो माना है. अच्छा, टैक्स कलेक्टेड बाय हिम कितना है, उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया. होलसेलर किससे टैक्स कलेक्ट करेगा, उसके बायर से. बोलो, राइट द अमाउंट, कितना टैक्स कलेक्ट किया उसने, कितना टैक्स कलेक्ट किया. एनीवन? टैक्स कलेक्टेड इज 10. ठीक है. अच्छा, मुझे बोलो होलसेलर ने कितना टैक्स पेड किया. होलसेलर ने कितना टैक्स पेड किया. होलसेलर ने गुड्स परचेस करते टाइम कितना जीएसटी पेड किया, 10 रुपीज. जो होलसेलर पे करेगा वही तो प्रोड्यूसर कलेक्ट करेगा. अच्छा, और कलेक्ट कितना किया, उसने कलेक्ट कितना किया, 12 रुपीज. रिटेलर ने कितना टैक्स पेड किया, जो होलसेलर ने कलेक्ट किया होगा वो पेड किया होगा रिटेलर ने 12 रुपए. बराबर. एंड उसने कलेक्ट कितना किया, जो कंज्यूमर ने पेड किया 15. बराबर. कंज्यूमर ने पेड कितना किया, 15. कलेक्ट कुछ करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो सेल नहीं करेगा. ध्यान देना क्या हो रहा है एवरीवन. होता क्या है, ध्यान देना एवरीवन. अब एक चीज समझ में आनी चाहिए. व्हेन यू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन यू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, यू हैव टू पे द टैक्स. क्या बोला मैंने, when you purchase goods and services you have to pay the tax is called as GST. उसको, उस टैक्स को बोला जाता है इनपुट टैक्स, उसको बोला जाता है इनपुट. उसको बोला जाता है इनपुट, उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट, आगे. when you sell the goods, when you sell the goods you collect the tax, right, from your buyer. उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स. सो दो वर्ड मैंने यूज किए, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी. व्हेन यू परचेज द गुड्स यू हैव टू पे द टैक्स. मतलब जब आप गुड्स परचेस करते हो, इनपुट करते हो, यू परचेज द गुड्स, इनपुट आ रहा है, तब जो टैक्स पे किया जाता है इट इज इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी. ठीक है. दूसरा, व्हेन यू सेल द गुड्स, आपका आउटपुट है वो. व्हेन यू सेल द गुड्स, जो टैक्स कलेक्ट करोगे बायर से, आपके बायर से, दैट टैक्स इज कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी. उसको क्या बोला जाएगा, आउटपुट जीएसटी. इनपुट जीएसटी इज एट द टाइम ऑफ परचेस, आउटपुट जीएसटी इज एट द टाइम ऑफ, राइट, सेल्स. सो एग्जांपल, हम लोगों ने आप लोगों से फीस लेते टाइम जीएसटी कलेक्ट किया, यू हैव पेड द जीएसटी. अभी भी कोई बच्चों के, 2-3 बच्चों के रिसिप्ट बनाना मेरे से बाकी होगा, आई राइट, मैं वो बना भी दूंगा, बट मैक्सिमम बच्चों के तो मैंने सब किए. 12th का रेट पूरा कंप्लीट है, फाउंडेशन का उनका है, खाली 11 के 1-2 बच्चों का बाकी है. आई डोंट हैव डेटा, इसलिए मैंने वो होल्ड पे रखा है, लेकिन हो जाएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ आई राइट, हमें वो जीएसटी का कैलकुलेट करके नेक्स्ट मंथ में पे करना होता है 5th-6th तक. तो क्या हो रहा है, ध्यान देना. जब मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने हमें टैक्स पेड किया है, वो टैक्स पेड बाय यू इज कलेक्टेड बाय अस, तो हमारे लिए वो जीएसटी आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी है, और आपके लिए वो इनपुट जीएसटी है. बट एक्चुअली आपके लिए वो इनपुट जीएसटी भी नहीं बोलते, आपके लिए वो एक्सपेंस है, बिकॉज आप सेल नहीं करते कहां पे, आप किसी को सर्विस नहीं दे रहे, तो आपका वो एक्सपेंस है, हमारा वो इनकम नहीं है. हम आपको बोलते हैं ये गवर्नमेंट को देना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हुआ क्या है, प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ से देखो, प्रोड्यूसर का इनपुट जीएसटी कुछ भी नहीं है, he has not paid any GST at the time of purchase, but when he sold the goods to wholesaler, when he sold the goods to wholesaler he collected tax of rupees 10. तो wholesaler को क्या बोलता है,
ही सेज टू होलसेलर कि गवर्नमेंट ने हमें टैक्स लगाने को बोला है, इसलिए हम 100 रुपीज मेरी सेलिंग प्राइस है, उस पर 10 रुपीज का टैक्स 10%, तो तुझे 110 देना है. प्रोड्यूसर विल कलेक्ट दैट 10 रुपीज फ्रॉम होलसेलर एंड विल पे टू द गवर्नमेंट. विल पे टू द गवर्नमेंट. ठीक है, 10 रुपए वो पे करेगा गवर्नमेंट को. सो द अमाउंट टू बी पेड, एक मिनट, नेट टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड टू गवर्नमेंट 10 रुपीज. 10 रुपीज पहले कुछ टैक्स पेड किया था क्या? नहीं. ठीक है, अब वो कितना पे करेगा गवर्नमेंट को? 10 रुपीज. होलसेलर से कलेक्ट करेगा 10 रुपए और गवर्नमेंट को देगा 10 रुपीज. अब होलसेलर के पास देखो, होलसेलर ऑलरेडी पेड 10 रुपीज. होलसेलर ऑलरेडी पेड 10 रुपीज टू द प्रोड्यूसर एंड देन ही कलेक्टेड 12 रुपीज फ्रॉम द रिटेलर. उसने, वो गवर्नमेंट को क्या बोलता है? देखो, गवर्नमेंट को बोलता है, गवर्नमेंट मैंने आपको पहले 10 रुपए दिए. गवर्नमेंट बोलते मुझे किधर दिया? तूने तो होलसेलर को टैक्स दिया है. तो होलसेलर ने, मैंने होलसेलर को दिया, वो आपको दे ना, वो आपको दे. देखो, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते. होलसेलर हैज पेड द टैक्स टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर विल पे इट टू द गवर्नमेंट. सो होलसेलर गवर्नमेंट को बोलता है मैंने ऑलरेडी 10 रुपए का टैक्स पेड किया है एंड मैंने कलेक्ट किया 12 रुपए का. मैंने मेरे रिटेलर को बोला कि ये 12 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने, बट मैं आपको 12 रुपए नहीं दूंगा. मैंने कलेक्ट किया है 12 रुपए, मैंने ऑलरेडी पेड किया 10 रुपए, तो अब मुझे खाली 2 रुपए पे करना बाकी है. आई विल पे यू 2 रुपीज. आई विल पे यू ₹2. क्या बोला उसने? मैं आपको खाली 2 रुपए पे करूंगा. मतलब जो मैंने टैक्स पेड किया है और जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया, पेड कब करोगे? जब आप परचेस करोगे तब. 10 रुपए पेड किया है, मैंने आपको पहले ही 10 रुपए पेड करके रखा है एंड मैंने कस्टमर से 12 रुपए कलेक्ट करके रखा है, तो मैं आपको 12 रुपए नहीं दूंगा. जस्ट गिव इट सेकंड. ओके, सो ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. होलसेलर बहुत सिंपली बोल रहा है गवर्नमेंट को बोल रहा है मैंने आपको पहले ही 10 रुपए दिए, अब मैंने इससे 12 रुपए दिए, तो जो मैंने पहले ही पेड किया है वो मैं माइनस करूंगा जो मैंने कलेक्ट किया है. मैंने 12 रुपए कलेक्ट किए, मैंने 10 रुपए आपको दिए, अब मैं खाली कलेक्ट किए 12 रुपए, पहले ही 10 रुपए दिए, अभी भी 2 रुपए देने बाकी है, मैं आपको 2 रुपए दूंगा. ठीक है, गवर्नमेंट को 2 रुपए देगा. फिर रिटेलर क्या बोलेगा? रिटेलर गवर्नमेंट को बोलेगा देखो गवर्नमेंट, मैंने 12 रुपए टैक्स पेड किया है, जब मैंने गुड्स परचेस किए तब मैंने 12 रुपए का टैक्स आपको दिया है. क्या बोलेगा वो? आई हैव पेड यू 12 रुपीज टैक्स. आई हैव पेड यू 12 रुपीज टैक्स. और जब मैंने सेल किया तब मैंने 15 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया. तो मैंने कस्टमर को बोला है मैंने 15 रुपए का टैक्स लिया कस्टमर से, कंज्यूमर से, और मैंने पहले ही मेरे जिससे मैंने बाय किया था होलसेल को 12 रुपए दिए, तो मैं आपको खाली 3 रुपए दूंगा. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गवर्नमेंट को कितना मिला? गवर्नमेंट को कितना मिला ध्यान देना. प्रोड्यूसर से 10 रुपए मिला, इससे 2 रुपए मिला, इससे 3 रुपए मिला, गवर्नमेंट को मिला 15 रुपए. गवर्नमेंट रिसीव 15 रुपीज टैक्स. अब ध्यान देना बस ये. अब होलसेलर की जेब देखो, होलसेलर, ये होलसेलर है, ये प्रोड्यूसर है, ये होलसेलर है, रिटेलर है, इनकी मजा देखना. ठीक है, और ये आपका लास्ट वाला बंदा, राइट, कंज्यूमर. इसने इससे लिए 10 रुपए. ठीक है, कुछ पेड किए थे क्या? टैक्स, जीएसटी का देखना, खाली जीएसटी. मजा देखना,
इसने जीएसटी कुछ पेड किया था क्या खुद के जेब से? नहीं। परचेस करते टाइम कुछ पेड किया था क्या? नहीं। और सेल करते टाइम कितना लिया? 10। यही 10 रुपए उसने गवर्नमेंट को दिया। मतलब मुझे बोलो, ये जो आपका प्रोड्यूसर है, उसने जो 10 रुपए गवर्नमेंट को दिए, उसने किससे लेके दिए? होलसेलर से। उसने खुद के जेब में से नहीं डाला। अब होलसेलर की मजा देखना। होलसेलर ने 10 रुपए दिए किसको? टैक्स के लिए प्रोड्यूसर को। और इससे कितना लिया? 12 रुपए। पहले 10 रुपए दिए, बाद में 12 रुपए ले लिए और गवर्नमेंट को 2 रुपए दिए। मतलब अगर आपको समझ में आता है, होलसेलर ने टोटल 12 रुपए दिए, 10 रुपए पहले और बाद में 2 रुपए। 10 रुपए पहले, बाद में 2 रुपए। बट ये 12 रुपए किससे लिए? किससे लिए? राइट, रिटेलर से लिए। उसके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। पहले 10 रुपए दिए होलसेलर ने, जब गुड्स परचेस किए तब खुद के जेब में से 10 दिए और बाद में 12 रुपए किसी और के जेब में से निकाले और उसमें से 10 रुपए खुद के पास रखे एंड 2 रुपए गवर्नमेंट को दिए। मतलब जो पहले 10 रुपए पेड किया था वो रिकवर किया उसने। पहले 10 रुपए जो टैक्स पेड किया था वो रिकवर किया उसके कस्टमर से, दैट इज रिटेलर से। रिटेलर से 12 रुपए लिए और गवर्नमेंट को खाली 2 रुपए दिए। मतलब जो पहले पेड किया था वो उसको उसके मिल गए। पहले ये जो 10 रुपए उसने पेड किया था यहाँ पे वो रिकवर हो गए और खाली गवर्नमेंट को 2 रुपए दिए। रिटेलर देखो, उसने 12 रुपए खुद के जेब में से पेड किया है और इसके जेब से निकाले उसने 15 रुपए। इसके जेब से निकाले 15 रुपए। अब जब कंज्यूमर के जेब से 15 रुपए निकालेगा, उसमें से 12 रुपए उसने जो पहले पेड किया वो खुद के पास रखेगा और गवर्नमेंट को खाली 3 रुपए देगा। इसका इनफ्लो, टैक्स इनफ्लो एंड टैक्स आउटफ्लो देखो। टैक्स इनफ्लो पहले आउटफ्लो एंड बाद में इनफ्लो। एंड टैक्स, राइट, टैक्स इनफ्लो एंड टैक्स आउटफ्लो। इनफ्लो लिखता हूं। इसने पहले कुछ पेड नहीं किया था टैक्स और इनफ्लो हुआ 10 रुपए का। ठीक है, ठीक है। आगे देन ध्यान देना, इसने 10 रुपए लिए। किससे लिए? होलसेलर से। गवर्नमेंट को 10 रुपए दिया। गवर्नमेंट को 10 रुपए दिया। फिर अब होलसेलर के लिए देखना, उसने 12 रुपए लिए किससे? कंज्यूम रिटेलर से। गवर्नमेंट को कितना दिया? पहले ये 10 रुपए दिए और बाद में 2 रुपए दिए। अब ये रिटेलर देखो, उसने कितने कलेक्ट किए पैसे? 15 रुपए। उसने कितना कलेक्ट किया? 15 रुपए। सो इसने कलेक्ट किए 15 रुपए और दिए कितने? पहले 12 रुपए दिए थे, बाद में 3 रुपए दिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? इनके जेब में से कुछ नहीं जा रहा है। प्रोड्यूसर देखो, प्रोड्यूसर उसने 10 रुपए लिए होलसेलर से। उसने होलसेलर से लिए 10 रुपए, राइट। ये प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने 10 रुपए कलेक्ट किए होलसेलर से और वही गवर्नमेंट को दिए। उसके जेब में से कुछ नहीं गया। होलसेलर देखो, उसने 12 रुपए लिए रिटेलर से, 12 रुपए रिटेलर से लिए, 10 रुपए प्रोड्यूसर को दिए थे। मतलब प्रोड्यूसर मतलब गवर्नमेंट को दिए उसके लिए, एंड बाद में 2 रुपए गवर्नमेंट को दिए। ऐसे 12 रुपए, 12 रुपए आए, 12 रुपए गए, उसके जेब से कुछ नहीं गया। रिटेलर देखो, उसने 15 रुपए लिए किससे? कंज्यूमर से। पहले 12 रुपए दिए थे होलसेलर को। होलसेलर को दिया मतलब उसके लिए वो गवर्नमेंट को दिया और बाद में 3 रुपए गवर्नमेंट को दिए। टोटल 15 आए, 15 गए। इनके जेब में से कुछ नहीं जा रहा है। बट कंज्यूमर देखो, ठीक है, कंज्यूमर देखो, कंज्यूमर पेड हाउ मच? 15 रुपीज। वो किसी से कलेक्ट करने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि वो सेल नहीं करने वाला। तो कंज्यूमर ने पेड किया 15 रुपए, उसने गवर्नमेंट को 15 रुपए दिए। उसका इनफ्लो देखो, टैक्स इनफ्लो कुछ भी नहीं है। वो किसी को सेल नहीं करने वाला, बट उसका आउटफ्लो 15 रुपए। जो गवर्नमेंट को 15 रुपए मिला है ना, गवर्नमेंट को 15 कैसे मिला है? प्रोड्यूसर ने 10 रुपए दिए। किससे लेके दिए? होलसेलर से। होलसेलर ने 2 रुपए दिए। किससे लेके दिए? रिटेलर। रिटेलर ने 3 रुपए लेके दिए। किससे लेके दिए? कंज्यूमर। एक्चुअली अगर समझ में आता है, अगर आपको समझ में आता है, ये 15 रुपए किसने पेड किए? कंज्यूमर ने।
ये जो 15 रुपए कंज्यूमर ने पेड किए, इनके जेब में से कुछ नहीं गया, होलसेलर के जेब में से 1 रुपए नहीं गया, रिटेलर के जेब में से 1 रुपए नहीं गया, प्रोड्यूसर के जेब में से 1 रुपए नहीं गया। जो भी टैक्स गया है ना, वो कंज्यूमर के जेब से गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द कंसेप्ट। इसलिए ये बीच वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक हम आपको, आपसे टैक्स लेते हैं, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता, हम आपसे लेते और गवर्नमेंट को देते हैं। अगर हम आपसे नहीं लेंगे तो हमें हमारे जेब से देना पड़ेगा, हम क्यों कर देते बेटे ऐसे। इसलिए होलसेलर को पता है, रिटेलर को पता है, प्रोड्यूसर को पता है कि उनके जेब में से कुछ नहीं जाएगा, खाली उनको कंप्लाई करना है, बायर से टैक्स क्रेडिट करना है बस। इट्स नॉट ए बिग डील, आप इजीली कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अल्टीमेटली टैक्स किसके जेब से गया? कंज्यूमर के जेब से गया। इसने 10 रुपए गवर्नमेंट को दिए और सामने वाले से 10 रुपए लिए। इसने राइट सामने वाले से 12 रुपए लिए, गवर्नमेंट को ओवरऑल 12 रुपए दिए। इसने सामने वाले से 15 रुपए लिए, ओवरऑल गवर्नमेंट को 12 रुपए दिए, 15 रुपए दिए। इसने सामने वाले से कुछ नहीं लिया, बट गवर्नमेंट को 15 रुपए। गवर्नमेंट मतलब सामने वाले को देना, मतलब आपके लिए गवर्नमेंट को देना। जब होलसेलर और प्रोड्यूसर को टैक्स देता है, इट इज एज गुड एज ही हैज पेड टू गवर्नमेंट। जब रिटेलर होलसेलर को टैक्स पे करता है, इट इज एज गुड एज पेड टू गवर्नमेंट। जब कंज्यूमर रिटेलर को पे करता है, इट इज एज गुड एज पेड टू गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को जो 15 रुपए लेने हैं, 15 रुपए लेने हैं, राइट, वो 15 रुपए एक्चुअली किससे लिए? कंज्यूमर से। बट वो धीरे धीरे आ गए। पहले 10 रुपए प्रोड्यूसर से आ गए, 2 रुपए होलसेलर से आ गए, रिटेलर से 3 आ गए। हाउएवर टैक्स का बर्डन किस पे गिरा है? राइट, कंज्यूमर पे। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। whenever you purchase, like example chocolate, you are paying the tax। आपने राइट बुक्स परचेस किए, यू आर पेइंग द टैक्स। आप टैक्स पे कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस, यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू परचेस व्हीकल फॉर योर सेल्फ यूज, नॉट बिजनेस यूज। तो ये पर्सनल यूज हो गया उस, राइट। आप किसी को सेल नहीं करने वाले, तो वो आपका एक्सपेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कंज्यूमर, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये 15 रुपए खर्चा किसका हुआ? कंज्यूमर का हुआ। इसलिए मैंने यहां पे बोला था कंज्यूमर का एक्सपेंस 150 नहीं है, कंज्यूमर का एक्सपेंस 165। कंज्यूमर का एक्सपेंस 165 रुपीज है। ठीक है, लिख लेना ये लिख लेना ये डायग्राम, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप बिजनेस करते हो ना तो टैक्स लेते जाओ, बिकॉज आपके जेब में से कुछ नहीं जाता। ऑलवेज रिमेंबर। एंड दूसरी बात, जब आप बायर हो तो डोंट फॉरगेट टू टेक द इनवाइस, क्योंकि जो टैक्स आप पे करने वाले हो ना, वैसे भी वो आपका खर्चा ही है। तो अगर आप इनवाइस लोगे
तो गवर्नमेंट को तो मिलेगा, नहीं तो वो लेके जाएगा, वो खुद के पास रखेगा, उसको गवर्नमेंट को देने को बोलो। इसलिए इनवाइस लेना, बिल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन होती है, अगर किसी ने ब्रेक किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए रिटेलर जनरली बिल्स नहीं बनाते। तो मेक श्योर यू आस्क हिम टू प्रिपेयर नॉट कच्चा बिल, द पक्का बिल। उसको बोलना मुझे पक्का बिल चाहिए भाई, क्योंकि वो आपसे टैक्स लेगा बट गवर्नमेंट को देगा नहीं, वो उसकी इनकम हो जाएगी। रिटेल रिटेलर का रिटेलर ऐसे करते हैं जनरली। सो एज ए बिजनेस, एज ए एकत्वम, हम आप लोगों से टैक्स लेते हैं और हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। हमारे जेब में से टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए 1 रुपए भी नहीं जाता। क्यों जाएगा ना? हाँ, पहले ऑब्वियसली आपको पहले पे कर, जब हम, अगर आप बिजनेस करो तो पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जब आप गुड्स परचेस करोगे तो पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड जब सेल करोगे तो टैक्स कलेक्ट करोगे, एंड फिर डिफरेंस गवर्नमेंट को देना होता है। डिफरेंस पहले जितना पेड किया है वो माइनस करो, जितना क्रेडिट किया और उतना गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, लिख लिया ये, सो दैट आई कैन गो अहेड। सो व्हाट इज इनपुट जीएसटी, मैं यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ। अगर ये भी लिखना है तो लिख सकते हो, मतलब क्लिक होगा आप लोगों को। हो गया लिख के? जल्दी बोलो यस और नो। अगर ये समझ में आए तो अकाउंटिंग समझ में आएगी। हाँ, जीएसटी में 2 टाइप के जीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी वगैरह, वो बाद में आएगा, पहले कंसेप्ट समझ लेना। गुड, ठीक है, अब ध्यान देना। यू हैव टू हेल्प मी आउट। देयर इज राम, ठीक है, राम, he purchased goods of 10,000, he paid GST, he purchased goods, ठीक है, of 10,000, he paid GST at the rate of 18%, that is 1,800. Total amount paid by him is 11,800. ठीक है, then he sold goods to his buyer, right, at selling price of 15,000, and he collected GST at the rate of 18%. 15,000 का 18% will be 2,700. So he collected from his buyer total 17,700. You have to tell me first, right? Input GST. इनपुट जीएसटी कितना है? टाइप द आंसर। इनपुट जीएसटी कितना है? इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना है? इनपुट जीएसटी मतलब गुड्स परचेस करते टाइम जो टैक्स आप पे करते हो, सर्विसेज परचेस करते टाइम जो टैक्स आप पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। बोलो इनपुट जीएसटी कितना है? मेक इट फास्ट। इनपुट जीएसटी, आउटपुट नहीं बोल रहा हूं देव, आउटपुट एंड इनपुट में इट्स इंडिया पाकिस्तान। इनपुट मतलब परचेस करते टाइम, गुड्स इनपुट होते टाइम, परचेस होते टाइम जो टैक्स पे करते हो, इट इज 1,800. इनपुट जीएसटी इज असेट, इनपुट जीएसटी इज असेट, एक्सपेंस नहीं होता, असेट होता है। क्यों? बिकॉज बाद में हम गवर्नमेंट को उतना कम पे करने वाले। ये लाइक प्रीपेड टैक्स है, हमने पहले ही पे करके रखा है, गवर्नमेंट को 1800 पहले ही पे करके रखा है, ऐसे समझो इसको, टैक्स पेड इन एडवांस ही है। इनपुट जीएसटी इज लाइक टैक्स पेड इन एडवांस, लाइक बोल रहा हूं, मतलब हमने पहले ही गवर्नमेंट को 1800 दे के रखे, बिकॉज हम बाद में सेल करने वाले, तब जो टैक्स आएगा, वो जब टैक्स कलेक्ट करेंगे उसमें से 1,800 कम पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को बोल रहे ये ले लो 1800 पहले ही। देन व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? What is output GST? GST at the time of sale 2,700. गवर्नमेंट को बोलेंगे 2,700 पेएबल है, ये लाइबिलिटी होती है, इज ए लाइबिलिटी। सो गवर्नमेंट को पे करना है 2,700,
गवर्नमेंट को ऑलरेडी पेड किया है 1800, देयरफॉर ध्यान देना, जीएसटी टू बी पेड। अब गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है? कोई मुझे बोलेगा गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? नेट पे करना होगा सर। गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा? इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट, क्या पे करना होता है? आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज 2700, इनपुट जीएसटी इज 1800, 900। सो गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? राइट, 900, परफेक्ट। इतना क्लियर है? सो देखो इसका इनफ्लो आउटफ्लो देखो आपने, राम का जीएसटी इनफ्लो है 2700, उसने कलेक्ट किया 2700 उसके बायर से। आउटफ्लो पहले उसने पेड किया गवर्नमेंट को मतलब उसके सेलर को 1800 और बाद में 900। उसका इनफ्लो 2700 है, उसका आउटफ्लो 2700 है, तो उसके जेब से कुछ गया करे? एक्चुअल में जीरो। उसके जेब से कुछ गया क्या? नहीं। क्लियर है? सो आगे से याद रखना। अब मुझे बोल सकते हो, अगर मैंने बोला इनपुट जीएसटी एसेट है, मतलब उसका बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अगर आप बैलेंस है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अगर इनपुट जीएसटी इज एसेट तो व्हाट यू थिंक? कल परसों थोड़ा डिस्कशन किया था, तो उसका बैलेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अगर एसेट है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? वो एंट्री में परफेक्ट, इट हैज टू बी डेबिट, ये डेबिट ही होना चाहिए एंट्री में। अच्छा, आउटपुट जीएसटी इज अ लाइबिलिटी, गवर्नमेंट को पे करना है 2700, ठीक है, बट हम वो 1800 माइनस करके पे करेंगे, ठीक है, एसेट का यूज करेंगे हम, हैज टू बी क्रेडिट बैलेंस, एंट्री में क्रेडिट होगा। सो 2700 की लाइबिलिटी है, 1800 की एसेट है, तो नेट गवर्नमेंट को पे करना है 900, बाद में पे करेंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? गुड। दिस इज एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, जिनको समझा है, ठीक है, देखते हैं अनदर एग्जांपल। ध्यान देना, द 3 पर्सन्स, ठीक है, हाँ, ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑफ 1 लाख, ठीक है, excluding GST, GST is 12%, suppose 12,000, ठीक है, then he sold these goods to C for rupees 1,20,000 plus 12% GST, so that will be 1,20,000 का 12%, 14,400, ठीक है? You have to tell me my same questions. What is input GST? हम B के लिए ढूंढ रहे हैं। For B, what is input GST? इनपुट जीएसटी, एंड ये प्रैक्टिकल लाइफ है, मतलब ये समझना ही चाहिए, दिस इज ब्रेड एंड बटर। अगर आपने कॉमर्स चूज किया तो ये ब्रेड एंड बटर है। 12,000 ये असेट होगी, बराबर, डेबिट। सेकंड, व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? 14,000, ओके, लायबिलिटी क्रेडिट,
14,400 सॉरी, ओके, ये होती है लाइबिलिटी। अब गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? नेट जीएसटी टू बी पेड, टू बी पेड, बोलो गवर्नमेंट को कितना पे करना बाकी है? पहले 12,000 पेड किए और बाद में कस्टमर से 14,400 लिए, तो गवर्नमेंट को अभी भी कितना पे करना बाकी है? 2,400। ये कैश में दोगे गवर्नमेंट को, कैश मतलब चेक के थ्रू या आरटीजीएस होता है, चेक भी नहीं होता है आजकल, सब आरटीजीएस के थ्रू होता है, एनईएफटी के थ्रू, ठीक है, वैसे 2,400। और इसके हमें रिटर्न्स भरने होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स, ये पूरा इंफॉर्मेशन देना होता है कि ये 12,000 कैसे आया। तो यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब बी ए से गुड्स परचेस करेगा, जब बी ए से गुड्स परचेस करेगा, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ए विल गिव इनवाइस, सेलर प्रिपेयर्स इनवाइस, बराबर ना, जो सेल करेगा वो बिल देगा, इनवाइस मतलब बिल। ए विल गिव एन इनवाइस, ए विल गिव इनवाइस टू बी, तो ये जो इनवाइस होगी, इस इनवाइस में देयर हैज टू बी टू जीएसटी, इसमें इस इनवाइस में दोनों के जीएसटी नंबर होने जरूरी है, जीएसटी, ठीक है, दोनों के मतलब बायर एज वेल एज सेलर के, राइट। इस इनवाइस में ए एंड बीज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होना इंपॉर्टेंट है, दोनों के होने चाहिए, बायर का भी होना चाहिए, सेलर का भी होना चाहिए, तब गवर्नमेंट को पता होता है। तो गवर्नमेंट मैच करती है, क्योंकि इसने जो टैक्स पेड किया है 12,000 जो पेड किया है ए को, बी ने जो 12,000 पेड किया है ए को, वो ए के लिए आउटपुट है एंड बी का इनपुट है। बी पेड 12,000 टैक्स टू ए, इट इज ए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए एंड इट इज असेट फॉर बी। तो ए ने दिखाया होगा कि ही हैज कलेक्टेड 12,000 टैक्स फ्रॉम बी, और बी ने दिखाना है उसके रिटर्न्स में ही हैज पेड 12,000 टैक्स टू ए, एंड गवर्नमेंट वो मैच करती है यूजिंग जीएसटी नंबर। एवरी सेलर हैज हिज ओन जीएसटी नंबर, एवरी बायर हैज इट्स ओन जीएसटी नंबर, हर एंटिटी को जीएसटी नंबर होता है। देखो जीएसटी का क्राइटेरिया क्या है, फॉर ए प्रोफेशनल्स लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक डॉक्टर्स, advocates, if your gross receipts fees collected during the year exceeds 20 lakhs, अगर आपकी फीस रिसीव्ड, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सीए बनते हो, एंड आपकी फीस, आपने जो फीस कलेक्ट की है, ऑडिट फीस कलेक्ट की है, इफ दैट एग्जिस्ट 20 lakhs, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो 20 lakhs से ज्यादा आपका टर्नओवर हो गया फॉर प्रोफेशनल्स, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। एंड अगर आप ट्रेडर हो, प्रोफेशनल नहीं बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल अलग और सी अलग, राइट, डॉक्टर्स दे आर प्रोफेशनल, बट आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके लिए 50 lakhs की लिमिट है। इफ योर टर्नओवर एग्जिट्स 50 lakhs, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता है, एंड एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया तो लाइफ टाइम चलता है वो, मतलब एक बार आप एक साल में भी आप एज ए प्रोफेशनल 20 lakhs के ऊपर जाते हो, फिर भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, एंड आपको रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है। बाद में आपका टर्नओवर 20 लाख से कम भी होगा तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता। अगर आप बिजनेस ही बंद करते हो, आप प्रैक्टिस ही बंद करते हो, तो वो कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, भले ही आपका 20 लाख से कम क्यों ना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जब ये बात हो रही है, राइट, सो बायर का भी जीएसटी नंबर होना इंपॉर्टेंट है, सेलर का भी जीएसटी नंबर होना इंपॉर्टेंट है। सो एंड यहां पे बी ने सी को गुड सेल किए होंगे, बराबर ना, तब बी विल रेज इनवाइस ऑन सी, बी विल इशू इनवाइस टू सी, उसमें बीस एंड सीज इनवाइस जीएसटी होना चाहिए।
जीएसटी होना इंपॉर्टेंट है। सो जो बी बिल बनाएगा उसमें बी का भी जीएसटी नंबर होना जरूरी है एंड ए का भी जीएसटी नंबर होना जरूरी है। एनी यू कैन ऐप देखो, जीएसटी नंबर लेना आप पे डिपेंड करता है। लाइक आपका टर्नओवर 1 रुपए है लेकिन आपको जीएसटी निकालना है, आप निकाल सकते हो। बट मैंडेटरी कब है? फॉर प्रोफेशनल्स 20 लाख। 20 लाख के ऊपर आपकी इनकम गई, इनकम मतलब टर्नओवर गया प्रोफेशनल्स का, तो ऑप्शन नहीं है, लेना ही लेना है। 20 लाख से कम है, ऑप्शनल है, लेना है ले लो, नहीं लेना है मत ले लो। अगर आप ट्रेडर हो, होलसेलर हो, लाइक आप अदर देन प्रोफेशनल हो, तो 50 लाख के ऊपर टर्नओवर गया तो लेना, फिर उसमें ऑप्शन नहीं होता, वो करना ही पड़ेगा। उसके नीचे तो ऑप्शनल है, लेना ही नहीं। सो जीएसटी नंबर अप टू दैट लिमिट इज ऑप्शनल, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इफ यू आस्क मी, मैंने निकाल के रखा है, मतलब मैंने बहुत पहले ही निकाला था, बट लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है। बट एक बार वो टर्नओवर क्रॉस हो गया तो इट इज मैंडेटरी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं फिर। ठीक है, अब ध्यान देना, आई कैन शो यू द आंसर, एक आदि दिखा सकता हूं मैं। रिसेंट वाला, या देखो, हम्म, किधर है वो? ओ, अब मुझे वहां पे थोड़ा उसका पेज का कलर चेंज करता हूँ फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, ध्यान देना, सो दैट आपको समझे हर चीज। मैं इसको व्हाइट करता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये नहीं दिखेगा बिकॉज ये ब्लैक में है सब, ठीक है। हाँ, अब देखो ये वाला देखो, देन आई विल अगेन डिलीट द पेज, खाली समझने के लिए। दिस इज यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न इज ऑथराइज्ड, राइट, सर्विस सेंटर, और he is a authorized dealer of the Apple devices, ठीक है। यूनिकॉर्न इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज द नेम ऑफ द सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, कुछ भी चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर ऑफिस उनका दिल्ली में, मैं यहां से पुणे से ले रहा था, शिवाजी नगर एमजी रोड, जेएम रोड, सॉरी, शिवाजी नगर जेएम रोड, ठीक है। ध्यान देना, बिल टू एकत्वम एकेडमी, बिल टू एकत्वम एकेडमी, ठीक है। देन ये हमारा जीएसटी नंबर है। आप आपके बिल पे भी चेक कर सकते हो, इनवाइस पे आपको जो ये मिला है, रिसिट मिला है, उस पे भी यही हमारा जीएसटी नंबर होगा, ठीक है। सो वी आर द बायर, एकत्वम एकेडमी इज द बायर, एकत्वम एकेडमी इज द बायर, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई पुणे में हुआ है, इन पुणे ओनली, ठीक है। ये हमारे ही डिटेल्स आ गए। दिस इज इनवाइस नंबर, ये बिल नंबर है, ठीक है। डेट ऑफ इनवाइस 4 सितंबर, 4 सितंबर, ठीक है। इनवाइस टाइम वगैरह जो कुछ भी है, कस्टमर कोड वगैरह हर कस्टमर का उनका रहेगा, परचेस ऑर्डर नंबर उनका रहेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जेएम रोड वगैरह वो रहेगा सब, देखो। अब यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर, एचएसएन कोड होता है, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, राइट। एचएसएन नंबर जिसको बोलते हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय द जीएसटी एक्ट। प्रोडक्ट कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन, ये पेंसिल की जो टिप है ना, ये मैंने परचेस की थी, ये वाली, ये जो टिप है ना ऊपर की, ये मैंने परचेस की थी, ये वाली, ठीक है। सो मैंने रिप्लेस की थी बेसिकली। सो ये टिप है एप्पल पेंसिल की, प्राइस इज 1500, क्वांटिटी इज 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, डिस्काउंट 0 रुपीज है, फिर जीएसटी, मतलब ये डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है उस पर जीएसटी लगता है, 18% जीएसटी, 1500 का 18% जीएसटी लेको, इट इज 228, ठीक है। दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी, दिस प्राइस इज इंक्लूडिंग जीएसटी, देखो
तो यहाँ पे नीचे लिखा है 1500 इज द टोटल अमाउंट, नेट ग्रॉस अमाउंट इज दिस, डिस्काउंट जीरो है, डिस्काउंट जीरो है, so 1271 is a amount excluding GST, this is excluding GST, फिर उन्होंने डिस्काउंट दिया जो जीरो है, फिर दिस इज नेट अमाउंट ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, फिर उन्होंने उस पर टैक्स लगाया, रेट इट इज 9%, 9%, इट इज 9%, 9%, सीजीएसटी एचजीएसटी, आईजीएसटी नहीं है बिकॉज सेलर इज फ्रॉम महाराष्ट्र, बायर इज ऑल्सो फ्रॉम द महाराष्ट्र, इसलिए आईजीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा, राइट। फिर ये आ गया, if you say these are the details of whom, these are the details of whom, राइट, द सेलर, उसमें उसका जीएसटी नंबर है, और ये डिटेल्स किसके हैं, ये डिटेल्स बायर के हैं, एकतम एकेडमी, ये वाले डिटेल्स देखो, इसमें हमारा जीएसटी है। सो जो उन्होंने यूनिकॉर्न वालों ने हम पे जीएसटी लगाया है, उन्होंने हम पे बिल ड्रॉ किया है, हमें बिल इनवाइस लगाया है, तो उसमें उनके भी जीएसटी नंबर है और हमारा भी जीएसटी नंबर है। तो हमारे लिए एकतम के लिए, राइट, एकतम के लिए इज इट, ये जो हमने टैक्स पेड किया है कितना है वो 114 प्लस 114 ऑलमोस्ट 228, इज इट इनपुट और आउटपुट, एकतम के लिए इज इट इनपुट और आउटपुट, व्हाट डू थिंक, ठीक है, व्हाट डू थिंक, एकतम के लिए इनपुट है या आउटपुट है, एकतम के लिए वी आर बायर फॉर दिस ट्रांजैक्शन, हमारे लिए इनपुट है, बराबर। सो जब मैं आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करूंगा, जब मैं आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करूंगा, वो मेरा आउटपुट है, फिर मैं उसमें से 114 माइनस करूंगा, उसमें से मैं 114 माइनस करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब मैं ये माइनस करूंगा कि मैंने पहले ही 114 200 228 माइनस करूंगा। सपोज मैंने टोटल एग्जांपल 10,000 का जीएसटी कलेक्ट किया इस मंथ में बच्चों से, एग्जांपल, तब मैं माइनस करूंगा 228 और गवर्नमेंट को नेट पे करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पूरा का पूरा गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, ऐसे हमने भी कोई चीजें ली होगी जिसपे हमने टैक्स पेड किया होगा। अनदर एग्जांपल, लेट मी शो यू, ये आ गया, और दूसरा एग्जांपल, आई नीड टू चेक, नहीं है, एक सेकंड, मैंने बहुत सारी चीजें डिलीट की होगी बीच में, एक सेकंड, कहाँ पे रहेगा, एक सेकंड, एक आधा और हो सकता है तो आई कैन शो यू, ओके आई कैन शो हियर, एक सेकंड, ध्यान देना, आई कैन शो हियर, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, इसकी लैपटॉप की, these are the फेसबुक इनवाइसेस, फेसबुक पे कभी कभी हम छोटी मोटी ऐड करते हैं, उसके इनवाइसेस, दे आल्सो लेवी जीएसटी, ध्यान देना, देखो वो आईजीएसटी लगाते हैं, लेकिन उनका हेड ऑफिस नॉट इन महाराष्ट्र, ठीक है, या प्लेस ऑफ सर्विस इज नॉट इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में सर्विस दे रहे बट कहाँ पे दूसरी जगह से वो दे रहे, देखो हो जाएगा ओपन, एक सेकंड, एंड दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच एक्चुअली, क्या एंट्री सिखाना 2 मिनट लगता है, एंट्री को क्या, बट एंट्री आई कैसे ये तो समझना इंपॉर्टेंट है उतना ही,
I can show you how we maintain the records. Okay, ध्यान देना. हाँ. So, ठीक है. दिस इज, ये मैं मेरे अकाउंट से करता हूं, तो ये मेरे नाम पे है. ठीक है. सो कुछ तो इंस्टाग्राम पे मैंने किया था 5-6 दिन के लिए. ठीक है. सो ये पोस्ट हो गया इंस्टाग्राम पे, 12 के एडमिशन के टाइम मैंने किया था, जस्ट एक करने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज राइट. ये फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम हरियाणा. ठीक है. ये उनका जीएसटी नंबर है, और ये हम है महाराष्ट्र. स्टेट को 27 इज फॉर महाराष्ट्र, राइट. प्लेस ऑफ सर्विस महाराष्ट्र. तो ये हमारा जीएसटी नंबर है एक कदम का. तो ये जो है ना आईजीएसटी, दिख रहा है आईजीएसटी, आईजीएसटी रहेगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आईजीएसटी, बिकॉज फिर ये आईजीएसटी रहेगा, बिकॉज दो स्टेट्स के बीच में ना ट्रांजैक्शन. सेलर इज फ्रॉम हरियाणा, बायर इज फ्रॉम राइट महाराष्ट्र. तो ऐसे रहता है. वी हैव टू मेंटेन. अब मैं देखो मेरे डिटेल्स. ठीक है. टाइप ऑफ एक्सपेंस, पर्टिकुलर्स जिसको आप नरेशन बोलते हो, दिस इज डिटेल्स ऑफ सप्लायर. लाइक एग्जांपल ये यूनिकॉर्न का था, यूनिकॉर्न का था 1500 वाला, ये था पेड बाय, मैंने पेड किया इसलिए ये मैंने मेरे नाम पे लिखा है. ठीक है. पेड बाय मी. तो यहाँ पे आपको दिखेगा. आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं है. राइट. स्क्रीन विजिबल है, होपफुली होनी चाहिए. देखो आप एग्जांपल 10 जून को ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस है, अकाउंट इज ऑफिस मेंटेनेंस, परचेस ऑफ कंप्यूटर माउस. ये माउस हमने परचेस किया था. ठीक है. फ्रॉम जेन कंप्यूटर्स, नेम ऑफ द सेलर इज जेन कंप्यूटर्स, बिल नंबर उसका जीएसटी नंबर, उस बिल पे इस जेन का नंबर रहेगा. नेट अमाउंट इज 635, सीजीएसटी एचजीएसटी टोटल 750 था. तो मेरे बुक्स में एंट्री रहेगी, मेरे लिए मैंने 750 पेड किया, बट उसमें से ये दोनों मेरे क्या है पता है, राइट. ये मेरी असेट है, ये मैंने पेड किया है. सो मेरा एक्सपेंस या ये मेरा एक्सपेंस 635, 750 एक्सपेंस नहीं होगा, मेरा एक्सपेंस होगा 635, ये मेरी असेट होगी. वैसे ही 20 अगस्त को मैंने आईपैड का चार्जर परचेस किया था. ठीक है. आईपैड का चार्जर फ्रॉम यूनिकॉर्न, राइट. तो उनका बिल नंबर है, ये उनका जीएसटी नंबर है, राइट. ये उसकी मेरा एक्सपेंस है, ये दोनों मेरे असेट है, सीजीएसटी एचजीएसटी टोटल 1700. देन आगे फिर ये अभी का जो बिल मैंने आपको दिखाया, परचेस ऑफ आईपैड पेंसिल टिप. ठीक है. फ्रॉम यूनिकॉर्न ओनली. यहाँ पे ये सब डिटेल्स मुझे देने होते हैं जीएसटी वालों को, इसलिए इतना डिटेल में रखा है. बिल नंबर, जीएसटी नंबर, ये मेरा एक्सपेंस है 1271. भले ही मैंने पेड 1500 किए हैं, बट उसमें से इतना ही मेरा एक्सपेंस है 1271, ये मेरी असेट है. आप देख सकते हो ये फेसबुक का, बट मैंने यहाँ पे आपको सीजीएसटी एचजीएसटी लिखा है, एक्चुअली आईजीएसटी. आई नो दैट. ठीक है. बिकॉज यहाँ से समझ में आता है 27 मतलब महाराष्ट्र, ये आउट ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं होना चाहिए, ये आईजीएसटी होना चाहिए. ठीक है. ये मुझे मेरा ट्रैक पता है वो. आगे अब यहाँ पे देखो, राइट. परचेस ऑफ डेल लैपटॉप चार्जर, बीच में देखो मैंने एक दिन लेक्चर कैंसिल किया था, वो वाला ये दिन था 3 अक्टूबर, राइट. तो ये राइट मुझे 1400 पे करने पड़े, पे किए 1400, बट मेरा एक्सपेंस है खाली 1186. ये तो मेरे टैक्स है, मैंने टैक्स पेड किया है, वो मेरी असेट है. जो तुम लोगों से मैं जीएसटी कट करूंगा उसमें से माइनस करूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा. देखो
फिर परचेस ऑफ सर्जिकल ग्लोव्स फॉर द ऑफिस स्टाफ, तो वो ऑफिस स्टाफ इधर उधर जाते हैं ना, तो उनके लिए हमने वो ग्लोव्स परचेस किए थे सेफर साइड के लिए, ठीक है। तो मैंने 1800 पेड किए, बट उसमें से 1607 ही मेरा कॉस्ट है, तो ये मेरी असेट है, मैं बाद में गवर्नमेंट को माइनस करके पे करूंगा। देखो अभी हार्ड डिस्क परचेस की थी हमने अमेजोन से, सो उसका भी मैंने उसके लिए 5100 पेड किए, 5100 पेड किए, बट मेरा एक्सपेंस 5100 है ही नहीं, बिकॉज उसमें टैक्स था, वो टैक्स मेरी असेट है, मैं गवर्नमेंट से ले लूंगा वो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सम ऑफ द बिल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग इतना क्लियरली रखते हैं, उसकी अकाउंटिंग होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी अकाउंटिंग भी होती है प्रॉपरली, जो मैं कल सिखाऊंगा आपको अकाउंटिंग कैसे होती है। कल मेरा लेक्चर रहेगा, यू कैन टेक फ्रॉम 9:15 टू 10 पकड़ के चलो, 10:15 तक, ठीक है। फिर हम राइट थोड़ा और मैं आपको एक्चुअल में भी दिखाऊंगा होता कैसे। ये होता है रियल लाइफ, अगर ठीक से समझ के करोगे तो हर चीज समझ में आती है। इनपुट इज व्हेन यू परचेस एनीथिंग यू पे द टैक्स, ठीक है। व्हेन यू परचेस समथिंग यू पे द टैक्स, दैट इज इनपुट। व्हेन यू सेल समथिंग यू कलेक्ट द टैक्स, दैट इज आउटपुट। जो पे करते हो वो असेट है, मतलब ये जो सब मैंने अभी जो आपको दिखाए ना, वो मेरे इनपुट थे, वो मेरी असेट थी। भले ही मैंने पेड किया है, बट बाद में मैं वो गवर्नमेंट से रिकवर करूंगा। कैसे रिकवर करूंगा? जो मैंने तुम लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है ना, वो उतना माइनस करके गवर्नमेंट को दूंगा। सो टैक्स पेड इज अ इनपुट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड is a output tax. Input tax is asset, not expense, asset. And right, tax output tax जो आप लोगों से क्या वो इनकम नहीं, मुझे देना होगा गवर्नमेंट को, इट्स a liability, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। मैंने जीएसटी का थोड़ा कुछ एग्जांपल देकर डिस्कशन किया है, अकाउंटिंग हम कल देखेंगे, ठीक है।